थी. So like his shin bone that was like broken in two. It's something called a technical fall down, जिसमें basically तुम्हें गिरना पता, भागते रहो. Hello, welcome back to my YouTube channel CHP Sahadev, and today we have another guest and another podcast. So let's introduce yourself. Who are you, Mr. Tushar Sharma? Hi, I'm Tushar. I am an MMA fighter by the day and a marketing professional by night, but primarily I'm an MMA fighter. So I'll be very honest that I don't know about MMA. Please tell me and tell the audience कि what is that? MMA is a sport. Basically बहुत सारे combat sports होते हैं. Boxing, kickboxing, jiu-jitsu, जो हर एक aspect of fighting को represent करते हैं. So boxing is just about fists. Kickboxing is about fists and your kicks. Then there is Muay Thai, which is sort of an advanced version, जिसमें तुम knees and elbows भी मार सकते हो. Jiu-Jitsu is more like ground game. कोई तुम्हें ज़मीन पे गिरा दिया है किसी ने, तो तुम वहाँ पे क्या करते हो. Wrestling is more like wrestling, लोगों को पता होगा. People remember सुशील कुमार. तो वो जो करते हैं उसे Greco-Roman wrestling बोलते हैं. So that is also one of the combat sports. तो इन सबको जब तुम मिला दो, including Taekwondo, Karate, and you mix all of these, that's mixed martial arts. That's MMA. Okay. So अगर मैं पहली बारी MMA फाइट देखूं तो मैं क्या नोटिस करूं या क्या किस पे मेरा टेंशन ज़्यादा होना चाहिए? Just enjoy the fight. That's the whole game. You never know what's gonna happen. It's a game of seconds. It's a game of inches. जो बंदा 15-16 साल तक भी undefeated रहा है, he has also been beat in like seconds. So you never know what's gonna happen. So just enjoy the fight. Okay, what is the biggest misconception about MMA? Misconception. There could be many, but I think personally अगर मैं बोलूँ, जब मैंने शुरू करा था, I used to think MMA first of all was very hard, but eventually जब मैं करता गया it became very easy. And even today I feel there can be moments जब वो बहुत मुश्किल हो सकता है, but I never feel अब कि मैं नहीं कर सकता. किसके क्या misconceptions है, that is very subjective. Okay. Maybe people can think, अगर मैं सोचूं दूसरे लोगों के हिसाब से, that it's just violence. That's not true. अगर तुम fighting को purely as fighting देखो, it is humans have evolved from fighting. ठीक है, maybe that's not our core, but जितने भी सालों से human रहे हैं, evolve हुए हैं, fighting has been a part of us. It's part of our DNA. Maybe more in men than women, but it's a part of us. And when you learn fighting, I think you learn a very instinctive thing जो हमारे DNA में already है. At least that's what I feel. जब मैं fight करता हूँ या train करता हूँ, something inside of me just feels alive. And I feel कि I just feel, I don't know क्या biological sense है इसकी, but I feel कि मेरे अंदर DNA में मेरे कुछ चल जाता है. And I feel that is the essence of fighting. So it's not violence. And even if it is, I don't mind. Everyone should know how to be violent and then learn how to control it. That's very important. लेकिन लोग ऐसे सोचते हैं, मतलब मगर मैं देखती हूँ जब भी घर आती हूँ तो ऐसे लगता है वायलेंस ही चल रहा है आसपास. Violence है because people get hurt, people die, but it is important. When you learn fighting तब जाके पता लगता है कि violence की value क्या है. See, अगर मैं एक example देके बताऊँ, इंडिया पाकिस्तान, द फैक्ट कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, तो इसलिए कोई भी कंट्री बहुत ही फुल स्केल अटैक नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है अगले बंदे के पास कैपेसिटी है ऑफ वायलेंस. पाकिस्तान कभी भी हमेशा छोटे अटैक ही करेगा और ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि दे नो इंडिया हैज़ द कैपेसिटी टू रिटेलिएट और बहुत वायलेंट हो सकता है मामला. सो व्हेन द अदर पर्सन नोज कि यू हैव द कैपेसिटी टू बी वायलेंट, देयर इज एन इनहेरेंट रिस्पेक्ट. तो ये तभी रियलाइज होता है कि वायलेंस की इंपॉर्टेंस क्या है जब तुम वायलेंस सीख जाते हो. ऑफ कोर्स वायलेंस सीखने के बाद उसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइटिंग जो अच्छे कोचेस तुम्हें सिखाते हैं कि सड़क पे नहीं लड़ना. नॉट बिकॉज कि तुम लड़ नहीं सकते, बट क्योंकि मैं एक ट्रेन फाइटर हूँ, दैट डज नॉट मीन कि अगला बंदा मुझे मिल रहा है वो भी एक ट्रेंड बंदा होगा. ऑल्दो जो ट्रेंड नहीं होता सबसे ज़्यादा अकड़ उसमें होती है, सबसे ज़्यादा सड़क पर लड़ाइयाँ वो करता है. बट अगर लड़ाई होती है, मेरी होती है फॉर एग्जाम्पल, आई वुड नॉट फाइट इन स्ट्रीट्स अनलेस एंड अनटिल या तो ऐसा है कि मैंने कितना ही पुश बैक कर लिया, वो मान ही नहीं रहा, मेरे पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं है, तब तो आई हैव टू फाइट. या फिर कोई ऐसी रिस्पेक्ट की बाउंड्री पार हो गई है कि अब आई जस्ट कांट लिसन टू हिम एनीमोर, तो लड़ना ही पड़ेगा. तो इन दो सिचुएशंस में आई वुड फाइट. बट
usually coaches teach you how to not fight in streets. Self control. सेल्फ कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आई नो हाउ टू पंच, आई नो हाउ टू जनरेट पावर मेरे हाथों में, एंड ऑल्सो यूजुअली पीपल आर नॉट यूज टू गेटिंग पंच्ड या गेटिंग किक्ड, सो देयर बॉडी डज नॉट रजिस्टर इट एज समथिंग दैट दे आर यूज टू. कोई मुझे मारेगा, आई विल बी ओके विद इट, मैं एकदम से गिरूंगा नहीं क्योंकि मेरे माइंड को पहली बात तो आदत है इस सब की. तो अगर किसी कोई एंट्रेन बंदा है उसके लिए बहुत न्यू होगा ये सब. और प्लस एक और चीज़ है, अगर मैं किसी को मार भी देता हूँ वो गिरता भी है. अब द थिंग इज सड़क पे लड़ाई हो रही है और वो गिर चुका है, आई डोंट नो ये जो हमारा बैक वाला एरिया होता है, बैक ऑफ द हेड, इस पे कोई प्रोटेक्शन लेयर नहीं होती. अगर ये जमीन पे लगा, आई डोंट नो कि अगला बंदा सिर्फ कंकस्ड है या कोमा में चला गया है या उसकी मौत हो गई है. यू नेवर नो इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है. फाइटिंग में भी कोई भी स्पोर्ट हो, MMA या बॉक्सिंग, बैक ऑफ द हेड पे पंच करना अलाउड नहीं है क्योंकि इफ यू गेट पंच्ड ऑन द बैक ऑफ द हेड अ लॉट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि तुम या तो पैरालाइज हो जाओगे और यू विल डाई या तुम कोमा में चले जाओगे. दैट्स व्हाई कभी भी किसी भी कॉम्बैट स्पोर्ट में बैक ऑफ द हेड अलाउड नहीं होता. जब तुम जिu-jitsu करते हो देयर इज समथिंग कॉल्ड अ टेक्निकल फॉल डाउन, जिसमें बेसिकली तुम्हें गिरना बताते हैं कि तुम्हें गिरना कैसे है, एंड उसमें बताया जाता है कि इस पार्ट को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखो, ये कभी स्मैक नहीं होना चाहिए मैट के ऊपर. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए अगला बंदा तो ट्रेन फाइटर नहीं होगा मोस्टली, सो यू नेवर नो, तुम उसे मार भी दो और बेचारा फिर क्या पता कहाँ गिरे कैसे गिरे. True. So, who were you before MMA? How did this journey begin? Like आपको कहाँ से क्या उठा एकदम से कि that I will be choosing this as a career? Okay. There was a time, I think I was in 11th या 12th, जब I was not feeling very confident in myself. Basically मैं confident मुझे लग रहा था मैं हूँ, but with time I realized कि ये just एक portrayal है. This is not who I truly am. This is something I want to be. But with time मुझे realize हुआ कि confidence मैं बस दिखा रहा हूँ, है नहीं. या अगर मैं उस चीज़ को बैकअप करने की कोशिश भी कर रहा हूँ तो मेरे पास शायद वो कैपेसिटी नहीं है कि मैं बैकअप कर लूँ, या वो कैपेबिलिटी नहीं है जो मुझे भरोसा करवाए कि मैं ये हूँ जो मैं दिखा रहा हूँ. सो आई रियलाइज कि ये कॉन्फिडेंस थोड़ा तो हॉलो है, थोड़ा दिखावे वाला है. एंड उस टाइम पे आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी गुड अबाउट माई सेल्फ. और आई रिमेंबर 11th का जून जुलाई के आसपास चल रहा था, एंड मैंने यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था ऐसी डूम स्क्रॉलिंग, एंड मैंने एक ट्रेलर देखा नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री का. दैट वाज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री कॉनर मैग्रेगर की, और उस समय मुझे कॉनर मैग्रेगर के बारे में भी नहीं पता था. सो मैंने ऐसे देख लिया ट्रेलर, एंड ट्रेलर में कमेंटेटर बोलता है क्या दिस मैन माइट वेरी वेल बी द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड टुडे. एंड जब मैं ये सुना कि बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड, तो मेरे दिमाग में 3-4 नाम आए, माइकल जॉर्डन, सचिन तेंदुलकर या माइकल जैक्सन, माइक टाइसन. तो मुझे लगा ये कौन बंदा है जिसका मैंने नाम नहीं सुना. सो मैंने उसके बारे में रिसर्च करना शुरू करा, एंड देन आई वाज लाइक शॉक्ड कि ये बंदा जो बोलता है वो करता है. इफ़ ही सेज कि वो फर्स्ट राउंड में इस पंच से ऐसे मारेगा किसी को, वो एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट प्रिसाइसली उसको प्रिडिक्ट कर रहा था. सो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बना, एंड देन कॉनर मैग्रेगर just kept on predicting things, he kept on doing the exact same thing. So I just felt that Conor McGregor had those qualities जो मुझे चाहिए थी उस टाइम पे to feel good about myself, या to feel कि हाँ मैं हूँ जो मैं बोलता हूँ. So मुझे वो चीज़ कॉनर मैग्रेगर में दिखी, वो क्वालिटीज़. That's why मैं उससे इंस्पायर हुआ. And then throughout 11th and 12th I always had it in my mind कि मुझे MMA करना है. I don't know why I did not start in 11th या 12th. I started after my school ended. But हाँ, ever since I discovered who Conor McGregor was, तो फाइटिंग से वहाँ से ऑब्सेशन थोड़ा स्टार्ट हो गया. कितने साल हो चुके हैं उस ऑब्सेशन को अपने करियर में ये सब? आई हैव बीन फाइटिंग फॉर 8 years ऑन एंड ऑफ बिकॉज आई हैव बीन डाउन विद सम इंजरीज बीच में, एज एवरी फाइटर हैज. सो हाँ, 8 years. Okay, so was there ever a moment you wanted to quit, and what kept you going? कभी लगा हो गिव अप करने का कि 2 मोमेंट्स में लगा, 3 मोमेंट्स में लगा एक्चुअली. तीसरा मोमेंट अभी चल रहा है. तो पहला मोमेंट था इन 2021. सो आई स्टार्टेड ट्रेनिंग इन 2018. 2021 में इन अ स्पैन ऑफ 2 महीने मेरे दादा दादी की डेथ हो गई थी. और उस समय पहले मेरे दादा की डेथ हुई, बट मैं उस टाइम पे भी ट्रेन कर रहा था, घर पे ही कर रहा था. बट फिर आउट ऑफ नोवेयर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरी दादी की भी डेथ हो गई. और उस मोमेंट पे बहुत मुश्किल था. आई हैड टू फाइंड अ रीज़न टू स्टे इन द गेम, बट आई वॉज वेरी कॉन्शियस कि हाँ मेरा गिव अप करने का मन कर रहा है, बट आई विल नॉट. मैं बस किसी न किसी तरह कोई रीज़न ढूंढ रहा था. सो आई सॉर्ट ऑफ यूज्ड मेरी दादी का जाना, उनकी डेथ एज अ रीज़न टू जस्ट कीप गोइंग, एंड आई केप्ट डूइंग इट फॉर अ बिट. देन 2023 में
आई हैड एन ACL एंड मेनिस्कस टेयर एक फाइट के दौरान। तो स्टार्टिंग में ठीक था, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, मुझे लगा ओके बीइंग अ फाइटर इट हैपेंस। ऑल्सो ACL टेयर बहुत कॉमन होता है फाइट्स में। तो जब वो हुआ आई वाज ओके, बट आई रियलाइज्ड कुछ महीने बाद इन ऑर्डर टू रिकवर फ्रॉम एन ACL टेयर तुम्हारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए। और मैं 1 साल तक अलग अलग हॉस्पिटल्स, अलग अलग क्लिनिक्स, पता नहीं दिल्ली NCR में कहाँ कहाँ घूम लिया। एंड मैंने कनाडा के डॉक्टर्स और ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर्स से बहुत बात करी वीडियो कॉल्स पे। तो उनकी फ़ीस तो अलग रह जाती थी, मतलब काफ़ी हाई थी उनकी फ़ीस। बट बेसिकली 1 साल में मुझे आइडिया लग गया कि जिन जिन डॉक्टर के पास मैं जा रहा हूँ दे आर नॉट गुड इनफ। एंड आई हैव टू से दिस वेरी आई हैव टू से दिस ऑनेस्टली, थोड़ा काट दिया उसको, ठीक है। आई हैव टू से दिस आउट लाउड कि इंडिया में देर आर गुड डॉक्टर्स बट इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड रियली रियली गुड डॉक्टर्स। मुझे नहीं मिले मेरे को बहुत ही जो अच्छी तरीके से मेरा रिहाब करा सके। सो जब मुझे मिले तब तक 1 साल निकल चुका था। एंड यूजुअली ACL एंड मेनिस्कस टेयर से रिकवर करने का टाइम इज़ लाइक 9 महीने से 1 साल तक, बट 1 साल मेरा अलग अलग डॉक्टर्स के पास ही निकला। इवन सफदरजंग स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर जो लोगों को लगता है बहुत बढ़िया है, मैं वहाँ भी गया था, वहाँ पे टाइम वेस्ट हुआ मेरा। सो आई डोंट थिंक गवर्नमेंट हैज़ गुड डॉक्टर्स एज वेल, दैट्स जस्ट माई परस्पेक्टिव। सो मुझे 1 साल लगा, बट उस 1 साल के बाद जब मुझे लगा कि यार अब तो मुझे 1 साल और लगेगा, तो तब मुझे लगा कि शुड आई इवन डू दिस। और बीच में मैंने फाइट्स देखना बंद कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि ये मैं करना चाहता हूँ और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने फाइट्स देखना बंद कर दिया। ठीक है, इंस्टाग्राम पे कभी कोई रील आती थी, मुझे पता था, आई वॉज अप टू डेट कि हो क्या रहा है, बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू सी एनी फाइट्स, कुछ भी हो रहा हो। फिर लाइक 3-4 महीने मैंने कुछ नहीं देखा। फिर विद टाइम उन 3-4 महीनों में मैं भी बेटर हुआ, मेरा रिहाब बेटर हुआ। जब मैं थोड़ा बेटर मूव करने लग गया, मेरा पैर पूरा बेंड होने लग गया, पूरा खुलने लग गया, तो मुझे लगा कि ओके आई एम गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। ऑल्दो उसके बाद बहुत टाइम लगा, बट एटलीस्ट मैं फाइट्स देखना शुरू कर दिया दोबारा। तो वो एक फेज था जब मुझे लगा कि आई शुड गिव इट अप। इनफैक्ट मैं सोच रहा था आई शुड गिव इट अप प्रॉपरली एंड मूव टू द UK मेरे मास्टर्स के लिए। एंड मैं ऑलमोस्ट कर भी चुका था 2024 के बिगिनिंग में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ठीक है अब पैर तो जा ही चुका है एंड मैं अर्न भी नहीं कर रहा था उस टाइम पे, मेरी बैचलर्स ख़त्म ही हुई थी कुछ टाइम पहले। सो आई वाज लाइक मैं मास्टर्स कर लेता हूँ, बट आई डिड नॉट गो क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं चला गया, मैं बैक ऑफ द माइंड मेरे चल रहा था, अगर मैं चला गया तो जो मेरे अंदर छोटी सी उम्मीद है कि गेम करने की वो भी ख़त्म हो जाएगी सारी। फिर पढ़ाई में, इन्वेस्टमेंट में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने में वहाँ चला जाएगा, इसलिए मैं नहीं गया। मेरी एजेंसी से बात हो रही थी, मैंने इनफैक्ट फ़ीस भी पे कर दी थी उनकी, बट देन आई जस्ट सेड नो, आई एम नॉट गोइंग। एंड द लास्ट थिंग, जो तीसरा एस्पेक्ट है वो भी है, अभी इसलिए है क्योंकि राइट नाउ माई जॉब इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड, इट्स जस्ट दैट बिकॉज ऑफ माई जॉब वो नाइट शिफ्ट है, सो उसकी वजह से मेरी सर्केडियन रिदम, मेरी हेल्थ थोड़ी सी डाउन आ रही है। इनफैक्ट ये बहुत कम है, लाइक आई एम नॉट फीलिंग आई शुड गिव अप, इट्स मोर लाइक आई हैव टू फिगर आउट। वो फिगर आउट करना थोड़ा सा हार्ड है बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू लीव माई जॉब, इट्स पेइंग मी गुड इनफ दैट आई एम एबल टू सस्टेन माई गेम। Okay. So what has MMA given you and what has it taken away from your life? क्या चीज़ दी है और क्या चीज़ छिन गई है? क्या चीज़ दी है मुझे? कॉन्फिडेंस श्योरली। अगर मैं 10 साल पहले देखूं, मैं कभी ऐसे नहीं बोल सकता था कि हाँ मुझे कोई भी मिल जाएगा मैं तो मार दूंगा या मैं देख लूँगा। राइट नाउ आई फील 3-4 बंदे भी एक साथ आएंगे तो आई हैव नो प्रॉब्लम, मैं चाहे पिट जाऊँ, वो दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम, बट मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं ले सकता हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड किसी से, सो आई डोंट हैव एनी फियर। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, आइदर वो ट्रेन करते हों फाइटिंग या ना करते हों। फाइटिंग इनहेरेंटली तुम्हें रिस्पेक्ट करना सिखा देता है, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग गुड एट फाइटिंग यू इट सॉर्ट ऑफ गेट्स योर हेड कि अब तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, बट देन इवेंचुअली यू फाइंड समवन जो तुम्हें गिरा देता है। ठीक है, आई स्टार्टेड गेटिंग रियली रियली गुड एट फाइटिंग इन 2020, लेट 2020, बट 2021 में आई मेट अ फ्यू प्रोफेशनल बॉक्सर्स एंड आई गॉट हम्बल्ड। मुझे लगा था कि ओके आई एम रियली गुड, बट उन्होंने मुझे बहुत पीटा। सो एक हम्बल पॉइंट दिख जाता है कि ओके आई एम गुड बट देयर आर पीपल हु आर बेटर देन मी, और वो हमेशा रहेंगे। सो हम्बलनेस, रिस्पेक्ट, and then as I said, the ability to be violent, I really love that ability. Even though I've been hurt, मेरी बॉडी का हर एक जॉइंट कभी ना कभी इंजर रहा है या फिर अभी भी है,
बट फिर भी वो जो कैपेसिटी है टू बी वायलेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. सो वो तो मुझे दिया है. एंड वॉट MMA हैज़ टेकन अवे फ्रॉम मी, हेल्थ टू एन एक्सटेंट, क्योंकि बीइंग एन फाइटर यू गेट हिट इन द फेस अ लॉट. तो जब तुम मुंह पे पंच खा रहे हो तो तुम्हारा ब्रेन भी वो डैमेज ले रहा है. एंड इट इज़ वाई ये बोला जाता है कि फाइटिंग की ट्रूएस्ट फॉर्म होती है हिट एंड डोंट गेट हिट. उसको पीटो बट उसको टच करने मत दो. बट वो बहुत आइडियलिस्टिक चीज़ है, वो रियलिटी नहीं हो सकती हर बार. सो आई डू गेट हिट अ लॉट कई बार, और मेरा दिमाग ऑफ कोर्स मेरा ब्रेन वो चीज़ लेता है. एंड विद टाइम, अब मैं 8 साल से कर रहा हूँ तो आई कैन सी पर्सनली कुछ चीज़ों में मैं चीज़ें भूल जाता हूँ जल्दी. सो पहले नहीं होता था वो. सो आई एम अज्यूमिंग दैट इज़ बिकॉज मैंने इतने सालों में पंच खाए हैं, सो वो थोड़े मेरे ब्रेन का तरीका है उससे रिएक्ट करने का. या आई हैव सीन पीपल हु डू वर्स. जो लोग बहुत ज़्यादा पंच खाते हैं वो अपनी बोलने की कैपेसिटी भी भूल छोड़ देते हैं. आई नो सम प्रोफेशनल बॉक्सर्स जिन्होंने बहुत पंच खाए हैं एंड दे आर गुड, लाइक वो सेंसेस में रहते हैं, बट विद एज द ईयर्स हैव गॉन बाय वो थोड़े ऐसे हो गए हैं, थोड़े ऐसे बोलने वाले. मैं मजाक नहीं उड़ाना चाह रहा, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट कि वो कैसे हो गए हैं. सो डेफिनेटली ब्रेन पे इम्पैक्ट होता है. इसलिए मेरा हमेशा रहता है कि मैं हमेशा अपना डिफेंस अच्छा रखूँ. बट इवन विद दैट यू गेट हिट अ लॉट, क्योंकि दैट्स द नेचर ऑफ द गेम. Okay. So what goes through your mind in those last 10 seconds before the cage door closes? It's a mix of nervousness and excitement. जब तक केज बंद नहीं हो रहा है तो नर्वसनेस है. जब तक केज बंद हुआ है उसके बाद तुम जा रहे हो, टच ग्लव्स, रेफरी बोलता है ओके बैक टू योर कॉर्नर्स, तब तक नर्वसनेस है. और आई थिंक पहले के 5-10 सेकेंड इज नर्वसनेस ओनली, बट उसके बाद है ट्रांजिशंस टू एक्साइटमेंट. एंड उसके बाद तुम सोचते नहीं हो, इवन तो तुम चाहो सोचना, तुम नहीं सोचते. वो सिचुएशन थोड़ी ऐसी है कि या तो अगर तुम बहुत अच्छे हो तो यू विल बी लाइक कि हाँ मैं कर सकता हूँ नॉमिनेट, अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है. और अगर लगा लो बाई चांस कॉन्फिडेंस नहीं है तो योर माइंड पुशेज यू टू एन एक्सटेंट कि तुम सर्वाइवल मोड में आ जाते हो. तुम सोचते नहीं हो किसी भी सेंस में, बट सर्वाइवल मोड अच्छा नहीं है. अगर तुम कॉन्फिडेंट हो बहुत ज़्यादा अपनी स्किल्स को लेकर, दैट इज़ बेटर. सो हाँ, इट्स अ मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट, नर्वसनेस. अर्लियर तो मैं डर में भी था. जब मैं 2019 में आई पार्टिसिपेटेड इन दिल्ली स्टेट बॉक्सिंग, तब मैं बहुत नर्वस था. एंड वो फाइट में नर्वसनेस में हार गया, क्योंकि नर्वसनेस में मैं पंच ही नहीं खोल पाया. सो वो बहुत ख़राब फाइट थी, मैं बिल्कुल वन साइडेड पता था. अच्छा, जैसे आपने बोला कि फाइट स्टार्ट होती है तो बीच में से गुस्सा तो आता होगा यार, इसने मेरे को पहले कैसे पीटा टाइप से, ऐसे कुछ गुस्सा बीच में आता है नहीं, या फिर वो कंट्रोल हो चुका है? नहीं. या शुरू में आता था गुस्सा? पहली बात तो इट्स नॉर्मल. पहली बात तो गुस्सा इज़ नॉट अ बैड थिंग, ह्यूमन इमोशन ही है. गुस्सा नहीं आता. अगर कोई मुझे लेट्स से स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स में 1-2 मिनट में मार भी देता है, इट्स ओके, इट्स द फाइट गेम. तुम मारते हो, वो भी बंदा ट्रेन करके आया है, कोई नौसिखिया नहीं है. सो आई एक्सपेक्ट हिम टू बी दैट गुड. सो गुस्सा तो नहीं हो रहा. नो. ओके. What is mentally harder, preparing for a fight, losing one, or waiting for the next opportunity? Waiting for the next opportunity, 100%. Okay. I have no problem losing, I have no problem fighting, but ever since I got injured, मेरे ACL tear के बाद, I'm just waiting for the next opportunity. Okay. अभी recent fight जो हुई थी, कॉर्नर Conor McGregor. ओके, उसके बारे में कुछ बता दो ताकि व्यूअर्स को भी पता चल जाए. Everybody knows who Conor McGregor is. मैं नहीं जानती ना. तो Conor McGregor is an Irish MMA fighter, and he is the person who sort of put MMA on the map. And a lot of people in India and globally वो MMA को इसलिए जानते हैं कि because Conor became so famous. Conor became bigger than MMA itself, so he became bigger than the sport. That's why people know him. And of course, as I said, मैंने भी Conor McGregor की डॉक्यूमेंट्री देखी, मैंने भी वहीं से शुरू करा था. So I think just like me, Conor has inspired many people. So that's him. Okay, आप रोए भी थे अभी रिसेंटली, मेरे को सुनने में आया फाइट देख के. ये चीज़ पॉडकास्ट में बोलने की नहीं थी. ये तो मैं बता सकती हूँ. आई वुड से मैं इमोशनल हो गया था. तो कॉनर मैग्रेगर की 2021 में एक फाइट थी डस्टिन पोरियर के साथ, जिसमें कॉनर मैग्रेगर की टिबिया बोन बिल्कुल टूट गई थी. सो लाइक हिज शिन बोन दैट वाज लाइक ब्रोकन इन 2. तो उसको हील करने के लिए 2-2.5 साल लगे. देन कॉनर की एक और फाइट अनाउंस हुई माइकल चैंडलर के साथ, बट उसमें उस फाइट की प्रिपरेशन में कॉनर को इंजरी होगी तो उसको वो फाइट से हटना पड़ा. सो अभी रिसेंट उसकी फाइट थी जो 5 साल बाद वो आया था. सो आई वाज वेरी एक्साइटेड
एंड मेरे मन में एक चीज़ थी कि इसकी लास्ट फाइट तरीके से एंड नहीं हुई. और द थिंग इज जब कॉनर हारा भी तो बहुत मीम्स बने, जस्ट लाइक बनते ही हैं. सो मुझे लगा कि अब आएगा तो मेरे 5 साल का जो खोट मुझे महसूस हो रही है वो पूरी होगी. बट अनफॉर्चुनेटली कॉनर का जो पहला मूव था, उसने जंपिंग राउंड हाउस किक मारने की कोशिश करी, पता नहीं क्यों, और उसका भी ACL टेयर हो गया. सो फाइट खत्म होगी 1 मिनट में. आई वॉज नॉट हैप्पी, आई वॉज नॉट मैड कि मुझे मैग्रेगर देखने को नहीं मिला फाइटिंग. आई वॉज जस्ट सैड कि मैग्रेगर खुद नहीं लड़ पाया, क्योंकि आई एम सॉर्ट ऑफ फेसिंग द सेम थिंग, क्योंकि मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ अपनी जब भी नेक्स्ट फाइट होती है. सो आई नो व्हाट दैट एंटिसिपेशन इज कि मुझे परफॉर्म करने को मिलेगा. Okay, so who is the person behind the fighter when the gloves comes off? आई थिंक आई एम द सेम इनसाइड एंड आउट. मैं जैसा बाहर हूँ वैसे अंदर हूँ. मे बी कुछ डिफरेंस हो सकता है, बट मोर और लेस आई डोंट थिंक देयर इज अ डिफरेंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. मे बी केज में इमोशंस थोड़े से टर्न्ड ऑफ होंगे, दैट कैन बी द ओनली डिफरेंस. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई ट्राई कि वैसे ही भी रहूँ. Okay. What is the biggest challenge stopping Indian MMA from reaching the global level? करप्शन नंबर 1. बहुत करप्ट है इंडिया, बहुत ज़्यादा करप्ट है इंडिया, बॉक्सिंग खासकर. मेरे कोच जो बहुत तगड़े बॉक्सर है, आई नो भाई, वो फाइट कर रहे हैं, वो मार रहे हैं, और अगले बंदे ने अगर 2 पंच में कनेक्ट कर दिए पर उसके कनेक्शंस हैं तो वो जीता है. मैंने वो चीज़ अपने आंखों के सामने देखी है. सो करप्शन नंबर 1. सेकेंडली, लोगों का माइंडसेट नहीं है भाई वो वाला. उनके पास कोई एग्जांपल नहीं है देखने के लिए कि हम ये भी कर सकते हैं. इंडिया में क्रिकेट इतना है बिकॉज 83 में कपिल देव एंड द क्रिकेट टीम दे वन द वर्ल्ड कप, सो दे फेल्ट कि ओके इंडिया इज गुड एट समथिंग. सो आई थिंक वहाँ से वो चीज़ शुरू हुई. दैट्स वाई इंडिया में क्रिकेट बहुत ज़्यादा है. इसलिए इंडिया किसी और स्पोर्ट में शायद उतना इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि उनको अभी तक आउटकम नहीं दिखा उसमें. एंड थर्ड इज लोगों का माइंडसेट भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जो MMA फाइटर्स ऑलरेडी हैं, या तो जिन लोगों के साथ उन्होंने शुरू करा है वो उनके साथ ही हैं, सो उन्होंने कभी ग्रो करने की कोशिश नहीं करी, अलग अलग टीम्स के साथ ट्रेनिंग करने की कोशिश नहीं करी, और अगर करी है सो आई थिंक देयर इज एन इनहेरेंट नीड फॉर सपोर्ट. मैं बहुत MMA फाइटर्स को देखता हूँ, उनकी फाइट आती है, लाइक वीडियो बनाते हैं कि गाइज मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो, मुझे देखो. इन्हें भीख मांगने वाली कोई बात नहीं है. इफ़ यू आर गुड पीपल विल वॉच यू, सिंपल एज दैट. True. तुम्हें भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं इसमें. इवन द फाइटर्स एट द वेरी टॉप, अगर कोई बोलता है कि ओके यू कैन ट्यून एंड वॉच माई फाइट एंड वॉच मी कम्पीट, दैट इज डिफरेंट. बट तुम अगर उसकी टोन ही चेंज कर दो कि मुझे सपोर्ट करो, मुझे देखो ताकि भारत आगे बढ़े, दैट इज मोर लाइक देश के नाम पे भीख मांगना मेरे हिसाब से. आई डोंट वांट टू डू दैट. मैं जितना बोल सकता हूँ कि ओके आई एम फाइटिंग, ट्यून इन वगैरह वगैरह, मैं कॉन्फिडेंट तरीके से बोल सकता हूँ उसको, बट मुझे भीख मांगने का तरीका नहीं पसंद. सो आई थिंक ये तीनों मिल जाते हैं. Okay. So, can India produce a UFC world champion in the next 10 years, do you Yes, think? it can. Okay. What legacy do you want to leave behind, not just as a fighter, but as a person? अगर कोई मुझसे कुछ भी सीखता है so they should just learn कि how you can express yourself in the best way possible. मेरे लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे वो चीज़ फाइटिंग तक है. फाइटिंग इज़ अ वे ऑफ मी रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ. अगर मैं वीडियोज़ में देखता हूँ, अगर अपनी वीडियोज़ देखता हूँ और मुझे लगता है कि वीडियोज़ में मैं थोड़ा रफ हो रहा हूँ या थोड़ा स्टिफ हो रहा हूँ, आई जस्ट फील दैट इज़ नॉट मी कम्प्लीटली. आई नीड टू बी फ्री फ्लोई. सो आई थिंक अगर मुझसे कोई कुछ सीख रहा है तो वन शुड बी एक्सप्रेस योर सेल्फ कम्प्लीटली विद रिस्पेक्ट एंड बी ओपन टू चेंज. लाइफ चेंजेस, पीपल कम एंड गो, होती रहती चीज़ें. जस्ट बेसिक चीज़ यार, शांत रहो, ज़िंदगी गुजारो आराम से. फाइटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, इट्स नॉट द होल थिंग. सो अगर कल को फाइटिंग नहीं भी होती एंड लेट्स से एट अ सर्टेन पॉइंट आई स्टॉप competing, I'll be okay with that. I will continue to train fighting जब तक मैं हूँ, because again that is a part of me. I want to express myself through that. तो अगर मैं नहीं करता तो मुझे बुरा लगता है. तो I think best thing one can take away from my life is कि just express yourself completely. That is the only way you can be at peace बिना किसी के हुए भी. Okay, now we have a rapid fire round जिसके लिए हैंड पर नहीं मिलेगा. कोई बात नहीं भाई. So, knockout or submission? Knockout. Dream opponent, past or present, जो भी. Dream opponent, Islam Makhachev.
Favorite cheat meal after a fight? बेसन के लड्डू. Morning training or night training? Morning training. One word your coach uses to describe you. Broly. One thing people always misunderstand about you. Everybody thinks I am very health conscious. Yes, you are. मैं हूँ, बट मैं इतना नहीं हूँ. Like लोग मुझे borderline वहमी बोल देते हैं. तो ऐसा नहीं है. I'm just very much aware of what goes on in my body. अभी भी मैं आज लंग कैपेसिटी टेस्ट करा के आया जो यूजुअली लोग नहीं कराते, बट एथलीट्स कराते हैं. तो अब मेरी लंग कैपेसिटी जो भी आई है, नाउ एवरीबडी इन दी हाउस इज लाइक कि इतना क्या हो गया, क्या कराने की ज़रूरत थी, तू बीमार थोड़ी है, तेरी ठीक तो है. बट ज़रूरत होती है. देयर आर 1000 डिफरेंट थिंग्स यू हैव टू डू. Okay, your workout song. आजकल मैं वो सुन रहा हूँ, वंडर बॉल बाय ओएसिस. Okay, favorite fighter of all time. कॉनर मैकग्रेगर. Okay, one message to the youngsters अपनी हेल्थ को लेकर. जैसे ही आपने बोला कि हेल्थ कॉन्शियस हो, तो आप कोई ऐसा मैसेज या फिर ऐसी कोई डाइट या फिर कुछ भी जो लोगों को इजी रहे कि अभी फॉर द टाइम बीइंग चेंज ला सके. Guys, get your heart checked every 6 months. Get your lungs checked every 6 months. लंग कैपेसिटी चेक कराते रहो. Keep moving. ठीक है, नॉर्मल जिम की बात नहीं कर रहा, बट कीप योर मोबिलिटी एक्टिव. स्ट्रेचिंग करते रहो, भागते रहो. ठीक है, स्पेशली अगर तुम दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो मेरी तरह, तो भागते रहो भाई, बहुत ज़रूरी है. एंड हाँ, दैट्स प्रीटी मच इट. अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करो. अगर कर सकते हो तो 3-4 महीने किसी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ काम करो. तुम्हें बहुत पता लगेगा तुम्हारे बारे में, तुम्हारी बॉडी को क्या सूट करता है, क्या नहीं करता. विद टाइम मुझे भी पता लगा कि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, बहुत चीज़ नहीं जचती मुझे. सो आई थिंक 5-6 महीने अगर तुम बहुत डेडिकेटली काम करो तो यू वुड नो कि तुम्हारी बॉडी को क्या चाहिए. Okay, so thank you so much for watching. This is it for today, and do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. This is Yashvi Sehdev.